Good evening. We have already discussed the weed science. So from today onwards, we are going to discuss about the soil science. In today's discussion, we are going to discuss about the bathering and processes and factors of soil formation. So coming straightway to the topic and the definition of soil, we will define soil. Soil is a dynamic natural body developed as a result of pathogenic processes during and after the bathering of rocks, consisting of minerals and organic constituents possessing definite chemical, physical, and biological properties, having variable depth over the surface of earth, and providing a medium for the growth of land plants. This is a very comprehensive and complete definition of soil. सॉइल इज अ डायनामिक नेचुरल बॉडी डायनामिक का एक ऑलवेज ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है डायनामिक है developed as a result of pathogenic processes. Pathogenic processes are the soil formation processes during and after the bathering of rocks, consisting of minerals and organic constituents possessing definite chemical, physical, and biological properties, having variable depth over the surface of earth, and providing a medium for the growth of land plants. Now, coming to the components of the soil, soil constitutes of 45% of the mineral. It consists of 45% of the mineral and 25% air, 25% water, which are intermingled. ये जो sign है ये intermingling का sign है. And it consists of 5% organic matter, 45% is mineral, 25% are air and water, and 5% is the organic matter. These are the components of soil. Now, before discussing the processes and factors of soil formation, we will discuss bathering. Bathering is a process of disintegration and decomposition of the rocks and minerals brought about by physical and chemical means, respectively, leading to the formation of regolith, unconsolidated residues of the bathing rock on the earth surface or above the solid rocks. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो bathering है it is a process of disintegration and decomposition of rocks by physical, chemical and biological processes leading to the formation of regolith. अब ये regolith क्या है? Regolith means unconsolidated residue. जो unconsolidated residue है किसका? जो weathering rock का, that is called regolith. तो weathering ये है disintegration and decomposition of the rock by physical, chemical and biological processes leading to formation of regolith. A regolith means unconsolidated residues of the rock. This is called bathering. Now bathering जो है वो कितने तरह की होती है? It is of three types: physical, chemical and biological. Bathering is of three types. I will discuss it from this piece of paper only. And now, what is physical bathering? Physical bathering means it's a mechanical process causing disintegration of consolidated rocks into smaller pieces. And in this physical bathering, the agents responsible for physical bathering are physical bathering क्या है? Mechanical process है causing disintegration of consolidated rocks into smaller pieces. इसके जो agents हैं वो हैं physical condition of the rock, जो responsible है इसके लिए temperature, water, wind and atmospheric electric phenomena. So these are 5 different agents which are responsible for the disintegration of the rock during the physical bathering. Now what is the physical condition of the rock? Physical condition rock कैसे इसको impact कर रही है? It is the permeability of the rock. परमिएबिलिटी ऑफ द रॉक डिसाइड्स द फिजिकल, जो उसकी कंडीशन जो ऑफ द रॉक जो है वो इस तरह डिसाइड करेगी कि कैसी, जैसे कि कोर्स टेक्सचर्ड सैंडस्टोन है, इट वेदर्स मोर रैपिडली देन द फाइन टेक्सचर्ड बसाल्ट. जो कोर्स टेक्सचर्ड सैंडस्टोन होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, इट वेदर्स मोर प्रोमिनेंटली, मोर रैपिडली देन द फाइन टेक्सचर्ड बसाल्ट. Now the coming to the second agent, that is temperature. Temperature जैसे diurnal temperature, two different ranges होते हैं temperature के. दिन में एक maximum होगा, minimum होगा, leads to alternating heating and cooling, which leads to stress and strains, and it leads to exfoliation. Exfoliation होगा rock का,
जिसके कारण हमारी जो रॉक है वो अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो टेम्परेचर के अंदर क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो रेंजेस होते हैं एक्सट्रीम्स। दिन में एक्सट्रीम जाएगा हायर साइड में और रात को जाएगा एक्सट्रीम लोअर साइड में, जिसके कारण अननेसेसरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा रॉक में और जिसके कारण एक्सफोलिएशन होगा और एक्सफोलिएशन के कारण रॉक जो वो अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन होगी। नो कमिंग टू द वाटर, तो वाटर एक्ट्स एज अ डिसइंटीग्रेटिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिटिंग एजेंट। वाटर जो है एक डिसइंटीग्रेटिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिटिंग एजेंट की तरह काम करता है। Now coming to the wind is having the erosive and transportive and abrasive effect. Wind का जो है वो erosive, transportive और abrasive effect होता है. Then last, which is coming under this physical battering, is the atmospheric electrical phenomena. Atmospheric electrical phenomena क्या है कि lightning जैसे कि breaks up the rocks and widen the cracks. So these are the 5 different agents under the physical battering, that is the physical condition of the rock, temperature, water, wind and the atmospheric electrical phenomena. So these are the 5 different agents. Now coming to the chemical battering. Chemical battering can be defined as a chemical process which involves the transformation of the original material of the rock into some new compounds. एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल मटेरियल ऑफ द रॉक टू सम न्यू कंपाउंड्स एंड इट जनरली, इसकी जो कैसे होती है ये, इट जनरली टेक्स प्लेस एट द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर होती है जनरली, रॉक के सरफेस के ऊपर। मोर प्रोनाउंस्ड इन ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस, इट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशंस। Plants and animals also contribute directly, indirectly to chemical battering as they produce oxygen, carbon dioxide and certain acids. तो हमारी जो chemical battering है, it is a quite complex process which involves the transformation of original material of the rock to some new compound. इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फिजिकल battering में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी, it was disintegration into the smaller pieces. What in chemical battering, there is a complete transformation of the form, the chemical nature of the rock is being changed and it is more prominent on the surface of the rock, it is more prominent in the humid tropical conditions and is being enhanced by the plants and animals directly or indirectly with the production of oxygen, carbon dioxide and certain acids. Now coming to the various chemical processes, what are the various chemical processes which are being involved in this chemical battering? There are different chemical processes such as solution, second is the hydration, third is the hydrolysis, fourth is the oxidation, fifth is the reduction and sixth is carbonation. तो हमें सिंपल सी प्रोसेसेस याद रखनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें प्रोसेसेस याद करनी है। सॉल्यूशन के बाद हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन याद करना इजी है। कार्बोनेशन, सॉल्यूशन सबसे पहले याद करना है, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस याद करना इजी है, oxidation, reduction and carbonation. So these are the different chemical processes which are being involved in the chemical battering. Now एक पॉइंट सबके अंदर हमें याद रखना है कि सॉल्यूशन कैसे होता है। सॉल्यूशन जैसे कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो कि डिसइंटीग्रेशन करता है। वाटर इज़ अ सॉल्युबिलिटी एक्शन ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर। परकोलेशन लीड्स टू होल्स, रिल्स एंड रफ सरफेसेस। इससे हमें, जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, कार्बन कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है रॉक से। सो वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन from the previous notes which I have mentioned. Just wait a minute. What is solution? So this is solution. Water is an universal solvent. Its solubility action is enhanced when it contains dissolved CO2, organic and inorganic acids or salts in it. Most of the minerals are affected by solubilizing action of water, though by varying degrees. When the soluble substances are removed by the continuous action of the following or percolating waters, the rock no longer remains solid and develops holes, rills and rough surface and ultimately decomposes. These are self explanation की जरूरत नहीं है, these are self explanatory.
नो कैसे होता है, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बोला गया कि जो वाटर की जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसका जो सॉल्युबिलिटी एक्शन जो है वो बढ़ जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स और सॉल्ट्स इन इट। तो एक एग्जांपल जो है वो इसका हम दे सकते हैं कि जैसे CO2 और H2O मिलके बनाते हैं हमारा H2CO3। एंड जब हमारा CO जो प्रेजेंट है हमारा एक्सपोज किया कि रॉक में CaCO3 और H2, अगर हमारा जो है ये दोनों मिलके H2CO3 बनाएगा। H2CO3 अगर हमारी रॉक में CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और H2CO3 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट होगा। और प्रेसिपिटेशन के कारण क्या है कि होल्स, रिल्स और रफ सरफेसेस बनेंगी रॉक में। नो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो अटैचमेंट हो जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल का, किसका, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ द रॉक, जो किसमें जो मटेरियल होगा, जो मिनरल होगा, उसके साथ उसका अटैचमेंट हो जाएगा H2O का, जिसके कारण जो है वो उसका रॉक में जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, इट बिकम सॉफ्टर और टेंड टू फॉल अपार्ट। सो वी विल डिस्कस इट फ्रॉम द नोट्स। इट इज़ अ केमिकल combination of water molecules with the mineral or mineral to form a new mineral. It is a chemical composition of water molecules with a mineral to form a new mineral. Owing to hydration, the mineral swells, loses luster, becomes softer and tend to fall apart. This is a major chemical bathing process in secondary minerals. This is a major chemical bathing process in secondary minerals. इसको तो leave this particular line. नो इसका हम एग्जांपल याद करेंगे, जैसे कि Al2O3, एलुमिनियम Al2O3, बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट जो है अगर वाटर के साथ मिलता है तो 3H2O बनाता है, Al2O3 3H2O, जो चूँकि इसका मतलब है गिब्साइट, उसका नाम है गिब्साइट, जिसके कारण क्या है कि वो स्वेल हो जाता है, अपना लस्टर लूज़ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। तो हाइड्रेशन में हमें इतना याद रखना है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है इट कंबाइंस विद द मिनरल, एंड जिसके कारण क्या होता है कि स्वेल हो जाता है, मिनरल लूज़ कर देता है, अपना लस्टर सॉफ्टर हो जाता है एंड टेंड्स टू फॉल अपार्ट। जैसे कि Al2O3 जो है वो 3H2O के साथ मिलके Al2O3 3H2O बनाता है, जिसका नाम है गिब्साइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रोसेस एंड दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब OH नेगेटिव, हमारे जो आयन्स हैं जो है वो पहले में H2O मिल रहा था, अभी हमारा जो आयन है कि OH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये जो है जाके क्या करता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रॉक है वो वीक होती है। सो वी विल डिस्कस इट। Hydrolysis is one of the most important processes in chemical bathing and results in complete disintegration or drastic modification in structure and composition of the minerals. It is a major chemical process in primary minerals. Hydrolysis involves the partial dissociation of water into H positive and OH negative ions, which combine with the minerals and bring about changes such as exchange, decomposition of crystalline structure and formation of new minerals। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर जो है वो इसकी पार्शियल डिसोसिएशन होती है हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मिनरल के साथ, तो क्या करते हैं कि एक नया मिनरल बनाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को उसको डिस्टर्ब करते हैं अगेन, एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रॉक का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इट बिकम्स वीक। जैसे कि हम बात करेंगे ऑर्थोक्लेज की। ऑर्थोक्लेज जो है वो उसका जो है फॉर्मूला है KAlSiO38, KAlSi3O8, HOH के साथ जब कंबाइन होता है, H2O के साथ जब कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो हमारे पास एसिड सिलिकेट क्ले बनता है, उसका फार्मूला है HAlSi3O8। K इज़ बीइंग रिप्लेस्ड विद H पॉजिटिव आयन, एंड दूसरा जो बनता है वो होता है KOH। तो एसिड सिलिकेट क्ले जो बनता है एंड दैट इज़ HAlSi3O8, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो रॉक का स्ट्रक्चर है इट बिकम्स वीक एंड इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, ये नया तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। नो कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑक्सीजन। ये कंबाइन ऑक्सीजन जो वो कंबाइन कर रही है, एक तरह का रस्टिंग हो रही है, जैसे कि हम आयरन में देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जो है वो बनता है। तो 4 इसका जो है सिंपल रिएक्शन है, 4FeO + O2 गिव्स अस 2Fe2O3। द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हमें इतना याद रखना है, एक रिएक्शन लिख देनी है, मोर देन सफिशिएंट है। देन कमिंग टू द रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
ये टोटली अपोजिट प्रोसेस है इसकी ऑक्सीडेशन की। इसमें क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जैसे कि 2Fe2O3, जिससे क्या इसका जो बन रहा है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट 4FeO + O2। ये ज़्यादातर सबमर्ज्ड कंडीशंस में होता है, इट अकर्स इन द सबमर्ज्ड कंडीशंस, जो डूबे हुए इलाके होते हैं वहाँ पे होता है। नो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद बेस, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद बेस। एंड जब ये कम्बिनेशन होता है तो एक इचिंग इफेक्ट होता है किसके ऊपर, जैसे कि लाइमस्टोन के ऊपर कार्बोनेट जो है वो इचिंग अफेक्ट क्रिएट करेगा, और जिसके कारण कहाँ पे करेगा, इन द रॉक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, उनमें इचिंग अफेक्ट होगा। एंड जो है उसका जो रॉक का जो है ब्रेकेज हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स होगी। इन सभी प्रोसेसेस के कारण हमारा क्या होगा कि रॉक की केमिकल बैदरिंग होगी। तो हमने पहले बात की थी सॉल्यूशन, देन कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज़ हाइड्रेशन, देन हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन। तो सब में हमें थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखने हैं। जैसे हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल एडअप हो जा रहा है, Al2O3 3H2O, गिब्साइट का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारा जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो कंबाइन कर रहे हैं और मिनरल के आयन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, जैसे कि एसिड सिलिकेट क्ले में HAlSi3O8। ऑक्सीडेशन में सिंपल सी प्रोसेस है कि 2Fe2O3 बन जा रहा है, एग्जाम्पल है उसका। एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है कि जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन की, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Then coming to the carbonation, it is the combination of carbon dioxide with base लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण क्या हो रहा है रॉक में इचिंग अफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट केमिकल एजेंट्स ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस ऑफ बैदरिंग। नो कमिंग टू द बायोलॉजिकल बैदरिंग। बायोलॉजिकल बैदरिंग का मतलब है कि इट इज़ डन बाय द लिविंग एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, एंड दिस इज द बायोलॉजिकल और लिविंग एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर। इट इज़ फौना एंड फ्लोरा। फोना और फ्लोरा जो है वो बायोलॉजिकल बैदरिंग कर रहे हैं। जैसे फौना में हम बात करें तो जैसे कि फौना में हमारी बात होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि कटिंग ऑफ हिल्स एंड रॉक्स, कटिंग ऑफ हिल्स एंड रॉक्स। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जैसे कि अपने जो होते हैं धरती को अपने पाँव से जो खोदने की कोशिश करते हैं, इसके कारण क्या होता है कि बुरोज एंड होल्स बनते हैं, होल्स बनाने की कोशिश करते हैं। एंड्स एंड टर्माइट्स क्या करती हैं, गैलरीज एंड पैसेजेस एंड फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं, जिसके कारण क्या है जब फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी और रॉक की जो है वो वीकनिंग होगी। नो कमिंग टू द फ्लोरा। फ्लोरा कैसे कर रहा है डिसरप्ट, फ्लोरा जो है जो प्लांट की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, दे कॉज डिसरप्टिव फोर्स ऑन द रॉक। देन जिसके कारण क्या होता है कि परकोलेशन, जब डिसरप्टिव फोर्स रॉक के होगा तो हल्का हल्का क्रैक होगा और परकोलेशन ऑफ वाटर टू डीपर लेयर्स होगा, जो जो पानी जो ऊपर रह रहा था अभी वो डीपर लेयर तक जाएगा। और एक कारण और होता है रूट्स का, वो है कि एसिड फॉर्मेशन बाय द रूट्स। रूट जो वो एसिड भी फॉर्म करती हैं। रूट क्या कर रही हैं, डिसरप्टिव फोर्स लगा रही हैं, जिसके कारण हल्के से क्रैक्स हो रहे हैं और क्रैक्स होने के कारण जो हो पानी जो हो डीपर लेयर्स में जा रहा है। एट द सेम टाइम रूट्स आर आल्सो क्रिएटिंग सम एसिड, दे आर आल्सो सिक्रेटिंग सम एसिड, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो रॉक है वो वीक हो रहा है। आल्सो द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज़ आल्सो बीइंग डिकम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ट्रीज़। उसकी जो ऑर्गेनिक मैटर जो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट सिक्रेशन करते हैं अलग अलग केमिकल्स का, जिसके कारण क्या हमारी जो रॉक है दैट डिसइंटीग्रेट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैदरिंग, दैट इज़ द फिजिकल, chemical and the biological bathering. Now coming to the second topic of the day, and the second topic of the day is soil formation. जो soil formation है वो किस तरह होती है, तो सॉइल फॉर्मेशन जो है उसके लिए हमने पहले बात की कि बैदरिंग हमने डिस्कस कर ली कि एक रॉक है और रॉक की बैदरिंग हो रही है, और बैदरिंग होने के बाद हमने बात की थी कि रेगोलिथ बन रहा है, एंड रेगोलिथ इज पेरेंट मटेरियल। उसके ऊपर पेरेंट मटेरियल जो है वो उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, अब उसके ऊपर कई सालों तक, इट मे टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर्मिंग प्रोसेस उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उनको सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। तो सॉइल का फॉर्मेशन के दो स्टेप्स हैं, द बैदरिंग ऑफ द रॉक टू पेरेंट मटेरियल एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम पेरेंट मटेरियल। सो हमने दोनों
of time it may take hundreds of years to make the soil profile. नो इसके बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो किसने की थी? डॉकुचेव, सॉइल सॉइल है वो एक पैटर्न फॉलो करती है, और पैटर्न फॉलो करने के बाद कैसे करती है वो, उसने ये भी इस्टेब्लिश किया कि जो सॉइल की फॉर्मेशन है इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। वो जो उसने तीन चीज़ों की बात की वो था PCLO, S इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ PCLO। P is the parent material, Cl is the climate and O is the organism। जो हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे, बायोटा की बात कर रहे थे, दैट इज़ दिस ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ क्लाइमेट एंड दिस इज़ पेरेंट मटेरियल। इन तीनों के कम्बिनेशन से जो है वो फंक्शन जो है वो हमारी जो सॉइल है, इन तीनों फैक्टर्स की जो है वो फंक्शन है, इंटरप्ले ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो दिस वाज द फर्स्ट hypothesis given by the Dokuchev। नो द सेकेंड जो फॉर्मुलेशन था वो सॉइल का, वो सेकेंड एक्सप्लेनेशन वो दी थी वो जेनी ने, इट ही मॉडिफाइड इट लिटिल बिट। उसने बोला कि सॉइल जो वो तीन नहीं है, सॉइल के जो उसने पांच बताए, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ClBPRT। नो CL इज़ क्लाइमेट, सेम उसी तरह B मीन्स बायोटा जिसको कि डॉकुचेव ने ऑर्गेनिज्म बोला था, P स्टैंड्स फॉर पेरेंट मटेरियल, R स्टैंड्स फॉर रिलीफ एंड T स्टैंड्स फॉर द टाइम। एक लंबा टाइम चाहिए, तो इन सभी प्रोसेसेस के इंटरप्ले के कारण जो है वो हमारी जो सॉइल है दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो होती है। नो कमिंग टू द थर्ड मॉडिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय जॉफी। जॉफी ने इन सभी फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में बांटा, दैट इज़ द एक्टिव फैक्टर्स एंड द पैसिव फैक्टर्स। तो एक्टिव फैक्टर्स में उसने क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स को रखा, मतलब क्लाइमेट एंड बायोटा को रखा उसने, एंड पैसिव फैक्टर्स में उसने पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम को रखा। सो PRT and CL and B, we can say CL means climate and B means biota. He kept it in active factors and PRT were kept in the passive factors. Now what are active soil forming factors? Active soil forming factors वो factor होते हैं which supply energy that acts on the mass for the purpose of soil formation। तो एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो कि एनर्जी सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? जो बेसिक पेरेंट मटेरियल होगा उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो जो उसने बोला था कि दो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट एंड बायोटा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट और बायोटा जो है वो किस तरह से जो है वो एनर्जी दे रहा है। तो एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स विच सप्लाई एनर्जी दैट एक्ट्स ऑन द मास फॉर द पर्पज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो उसने क्लाइमेट की बात की थी, क्लाइमेट की बात की है और बायोटा की बात की है। तो क्लाइमेट में सबसे पहले आएगा हमारा रेनफॉल एंड द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। और बायोटा में नेचर ऑफ वेजिटेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो रेनफॉल जो है, जिन इलाकों में रेनफॉल ज़्यादा होती है उन इलाकों में ह्यूमिड रीजन्स एग्जिबिट गुड सॉइल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमिड रीजन्स exhibit good soil origination because precipitation is greater than PET. Now what is PET? It is potential evapotranspiration, potential evapotranspiration, जिसके कारण क्या होता है कि लीचिंग ऑफ द बेसिस होता है, बेस जो उसकी काफ़ी सारी लीचिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी एसिडिक सॉइल होगी, प्लस मोर ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू लेस डिकम्पोजिशन। तो हमारा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसकी कम डिकम्पोजिशन होगी बिकॉज ऑफ द मोर ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू द लेस डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक है। और हमारे जो एरिड रीजन्स हैं, एरिड रीजन में हमारा क्या हो रहा है कि हैविंग अ वेरी पुअर ओरिजिनेशन, रेनफॉल जो है वो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन से कम हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिस ड्यू टू लेस पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड हाई पीएच। तो हमारी जो है गुड ओरिजिन की जो हमारी सॉइल बन रही है वो ह्यूमिड रीजन में बन रही है, एंड पुअर ओरिजिन की हमारी जो सॉइल है
इट इज़ बिकमिंग इन द एरिड रीजन्स। क्योंकि हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रेसिपिटेशन जो है वो पीईटी से ज़्यादा होती है, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो पीईटी से कम हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिस हो रहे हैं, लेस पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड हाई पीएच। और हमारी जो ह्यूमिड रीजन्स हैं उसमें हमारा प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है, लीचिंग ऑफ बेसिस हो रहा है, एसिडिक सॉइल बन रही है, मोर ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू लेस डिकम्पोजिशन जो वो कम हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन कम, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा यहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा होगा और डिकम्पोजिशन का रेट कम होगा। Now coming to the second factor is that under the climate is the temperature. तो वैन हॉफ की जो डेफिनेशन बोलती है कि इसका जो हाइपोथेसिस बोलता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द केमिकल रिएक्शंस आर इंक्रीज्ड बाय 2 to 3 टाइम्स। जब केमिकल रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगी सॉइल में तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नो कमिंग टू द बायोटा फैक्टर, बायोटा जो एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है वो बोलता है कि नेचर ऑफ वेजिटेशन, जो नेचर ऑफ वेजिटेशन जो है इट प्रोवाइड्स फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स इज मोर अंडर ग्रासलैंड वेजिटेशन। तो जहाँ पे नेचर ऑफ वेजिटेशन मतलब कि जो नेचर ऑफ वेजिटेशन डिसाइड करता है वो कैसे डिसाइड करता है कि जैसे कि सॉइल का जो एग्रीगेशन है इट इज़ मोर इन द ग्रासलैंड वेजिटेशन। ऑल्सो वेजिटेटिव कवर रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, mineral element content in the leaves and stems of the natural vegetation strongly influence the characters of the soil which it develops। तो नेचर ऑफ वेजिटेशन कैसे कर रहा है कि बोला गया कि जिन इलाकों में वेजिटेशन होगा तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वहाँ की जो सॉइल एग्रीगेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, तो ग्रासलैंड में सॉइल एग्रीगेशन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन। सॉइल की जो रूट्स हैं, जैसे हमने बात किया कि रूट्स जो हैं वो क्या करेंगी, बाइंड करेंगी सॉइल को, बांध के रखेंगी। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, एट द सेम टाइम माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। वो कुछ ना कुछ सीक्रेट्स करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स का सीक्रेशन करेंगे जो कि एग्रीगेशन करेंगे सॉइल की। सॉइल जो है उस सॉइल को इकट्ठा करेंगे, कोलॉइड्स बनाएंगे, सॉइल का एग्रीगेशन करेंगे और सॉइल के स्ट्रक्चर को सुधारेंगे। सो नेचर ऑफ वेजिटेशन डिसाइड्स द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस। Now coming to the second, that is microbial activity. Microbial activity, microorganisms, nutrient recycling, profile mixing and differentiation होता है। These are different type of activities which are being carried out by the microorganisms। तो microorganisms क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर रहे हैं, प्रोफाइल को मिक्स कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। नो कमिंग टू द थर्ड एंड दैट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि डिफरेस्टेशन, टिलिंग ऑफ सॉइल्स, इरिगेशन, ये भी कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मिंग जो है उसको हैम्पर करते हैं या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं उसका। सो दीज आर द टू different active soil forming factors and which are coming under climate and biota. Now coming to the second, that is the passive soil forming factors। तो passive soil forming factors के अंदर these are those factors which represent the soil source of soil forming mass and conditions affecting it। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि सोर्स बताते हैं ऑफ सॉइल फॉर्मिंग मास एंड कंडीशंस, जो उसके ऊपर कंडीशन, एक हमारा जो मास है सॉइल का एक मास है उसके ऊपर जो एनर्जी दे रहा था उसको हम बोले थे एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। बट उस मास का जो सोर्स बताता है, अभी हमारा मास है, हमारा मास क्या है, पेरेंट मटेरियल, इसका जो सोर्स ऑफ सॉइल फॉर्मिंग मास, इसका जो सोर्स बता रहा है कोई प्रोसेस, और उसके ऊपर जो कंडीशंस एक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर जो कंडीशंस अफेक्ट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। और जिसको हम करेंगे, जैसे कि हमने बोला कि इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है पेरेंट मटेरियल, और उसके ऊपर जो उसकी कंडीशंस क्या क्या इम्पैक्ट कर रही हैं। तो कंडीशंस क्या है, एक तो रिलीफ एंड दूसरा है टाइम। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर बनाता है। नाउ कमिंग टू द पेरेंट मटेरियल have a significant influence on the soil characteristics during initial stages। तो सॉइल की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसमें जो पेरेंट मटेरियल है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट इन्फ्लुएंस द बेसिक प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉइल टेक्सचर विच कैन नॉट बी अल्टर्ड ईजिली। जिसकी हम बात करते हैं कि जैसे कि बसाल्ट, हमने बात की कि इट इन्फ्लुएंसेस द करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। जैसे कि बसाल्ट है, तो बसाल्ट जो है वो जो किसका पेरेंट मटेरियल है, इट इज़ अ पेरेंट मटेरियल ऑफ रेड सॉइल। जो रेड सॉइल्स हैं जिसको कि हम अल्टीसोल्स भी बोलते हैं, तो उनका जो बेसिक मटेरियल है दैट इज़ बसाल्ट। देन हमारा जो लाइट टेक्सचर्ड पोरजोलिक सॉइल्स हैं, इसका जो बेसिक मटेरियल है वो है एसिड इग्नियस रॉक्स। So the basic material, the parent material decides the final outcome of the rocks and not rocks, final outcome of the soils।
बसॉल्ट से बन रही है रेड सॉइल एंड एसिड इग्नियस रॉक से बन रही है लाइट टेक्सचर्ड पोडोजोलिक सॉइल्स. नो कमिंग टू द सेकंड एंड दैट इज द रिलीफ. तो कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड सरफेस, रिलीफ कैसे डिसाइड कर रहा है, जहाँ पे ज़्यादा स्लोप होगी वहाँ पे ज़्यादा इरोजन होगा, ज़्यादा रन ऑफ होगा एंड सॉइल प्रोफाइल जो वो बड़ा वीक होगा. और जहाँ पे फ्लैट प्रोफाइल होगा वहाँ पे क्या होगा कि सॉइल का ओरिजिनेशन अच्छा होगा. तो configuration of the land surface defined in terms of elevation and slope is called relief. It is a configuration of land surface defined in terms of elevation and slope. इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, जो स्लोप है वो क्लाइमेट और वेजिटेशन को जो वो डिसाइड कर. रिलीफ जो है नॉट स्लोप, इट इज़ अ रिलीफ विच डिसाइड्स द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. इन्फ्लुएंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. Thick soil profile in flat topography and shallow stony and weakly developed profile on steep slopes due to accelerated erosion. Now coming to the third factor, and which is coming under the passive, that is time. It is a time interaction of various soil forming factors like climate, biota, topography over a period of time leads to formation of distinct layers called genetic horizons, that is the mature soil with A, B, C and horizons. तो different हमारे जितने भी factors हैं जैसे कि climate, biota, topography, वो क्या करते हैं कि there's an interplay of all these factors which leads to the formation of genetic horizons which are called, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल में. जेनेटिक होरिजन्स की डेवलपमेंट होती है विच आर ए बी सी होरिजन्स. नो पेडजोनिक और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, इसके बारे में वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच.